हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को किस तरह से हम लोग ये ओपन बैंक अकाउंट का तो मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये दूसरा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग एग्ज़ाम को ट्रेनिंग को पास आउट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे आप लोगों को नॉट कंप्लीट पे यहाँ पे दिख रहा होगा, रिकम्प्लीटेड है तो नॉट कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश में करने वाला हूँ। अगर आप लोग हिंदी ऑप्शन होगा तो हिंदी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम ही होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्ले का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे मिडिल में भी क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा 3 मिनट का है, आपको अच्छे से साफ साफ देख लेना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है कि आपको इस वीडियो में क्या सिखाया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। Hello. Welcome to the module of new DBT linking process of Airtel Payments Bank. The new flow is simpler and will give visibility to customers on their current DBT status, which will help us reduce incorrect DBT linking attempts. Let's go through the video and understand the flow. Retailer select the link Aadhaar for DBT. For Aadhaar linking, retailer has to enter the customer's mobile number linked with Airtel Payments Bank savings account, which is verified via OTP. If customer is already linked with Airtel Payments Bank, this screen will be shown. Customer can opt for linking again by clicking on Proceed. On clicking Home, will be redirected to Mitra main menu. If customer's previous request is pending, this screen will be shown. As the request is already submitted and is pending with NPCI, customer will get a confirmation SMS on his registered mobile number within 24 hours of request submission. If customer is not linked with Airtel Payments Bank, this screen will be shown for checking current bank linked details post customer's consent and biometric authentication. Customer will get an SMS with this current linking status on his registered mobile number. SMS to customer with linking details. If linked message will have status A, which is active, and I, which is inactive, along with bank name. SMS to customer when not linked. If not linked, this message will be shown to customer. Based on whether the customer is linked or not linked with other bank, he will be taken to next screen. If customer wants to link DBT from other bank to Airtel Payments Bank, this screen will be shown to enter bank name. 1. The retailer has to enter bank name as per SMS received by the customer. 2. The customer then gives his consent and biometric for linking his or her Aadhaar with Airtel Payments Bank account. Retailer MPIN is captured after customer's biometric authentication. Request submitted successfully to NPCI and customer will get the linking confirmation via SMS. If customer is linking DBT for first time, this screen will be shown to take customer's consent and biometric for linking his or her Aadhaar with Airtel Payments Bank account. Retailer MPIN is captured after customer's biometric authentication. Request submitted successfully to NPCI and customer will get the linking confirmation via SMS. Now it's the time to complete the certification based on the training. It is necessary to get 80% marks to complete the certification. Click here to start the certification. तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना अपना। मैं यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डू कस्टमर नीड टू लिंक DBT टू देयर बैंक अकाउंट।
तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करना है, टू रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडीज़ इन देयर अकाउंट, और यहाँ पे टू रिसीव अपडेट बी का ऑप्शन है, तो इसमें आप लोग फर्स्ट का ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। लिखा हुआ है व्हाट डज डीबीटी स्टैंड फॉर, यानी कि डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे। इसका होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यहाँ पे एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को थर्ड का ऑप्शन देखना होगा। यहाँ पे आप लोगों को इज कस्टमर, क्वेश्चन लिख के आ रहा है, इज कस्टमर कंसेंट मैंडेटरी टू लिंक डीबीटी अकाउंट इन एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यस करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है आगे। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच बैंक नेम शुड वी सेलेक्ट इन मित्रा तेज वाइल डूइंग डीबीटी। अब यहाँ पे प्रीवियस बैंक नेम वेयर द डीबीटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ के बाद यहाँ पे 5 में क्वेश्चन में देखना आप लोगों को। फिफ्थ में लिखा हुआ वेयर कैन कस्टमर फाइंड द प्रीवियस बैंक नेम फॉर लिंकिंग देयर अकाउंट टू एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये कस्टमर गेट देयर लिंकिंग स्टेटस एंड बैंक नेम विया एसएमएस, उस वाले पे एसएमएस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है इज कस्टमर बायोमेट्रिक मैंडेटरी फॉर लिंकिंग डीबीटी टू देयर अकाउंट। अब यहाँ पे आप लोगों को 6 में भी आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विल कस्टमर गेट एसएमएस आफ्टर सक्सेसफुली लिंक विथ एयरटेल पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन में है आप लोग का इफ़ कस्टमर एसबीए अकाउंट इज ब्लॉक्ड और फ्रीज्ड कैन दे लिंक डीबीटी। अगर यहाँ पे आप लोगों का ब्लॉक और फ्रीज्ड अकाउंट होता है तो लिंक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को नो कर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछता है 9th का, यहाँ पे कैन रिटेलर लिंक डीबीटी टू एयरटेल पेमेंट बैंक वैलिड कस्टमर, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, व्हेन कैन ए रिटेलर ट्राई अगेन इफ ए प्रीवियस रिक्वेस्ट फॉर लिंकिंग इज पेंडिंग। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग दिया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे 48 आप लोगों को कर लेना है। अब यहाँ पे 24 आवर पे क्लिक करके अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 90% यहाँ पे लिख के आ चुका है। ठीक है, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं 90%। अब यहाँ पे माई टर्निंग पे जाएं। अब यहाँ पे फिर से एक ऊपर में लिख करके आ रहा है सर्टिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। इस पर सर्टिफिकेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे 2 अब यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और ओपन बैंक अकाउंट का। अब यहाँ पे ये जो API है अटल पेंशन योजना वाला, इस पर आप लोग नॉट कंप्लीटेड है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है।